Hello 10th class students, hope all of you are fine at your home. Students, to make the continuity of our chapter 2nd of civics, the president and vice president, this is my 4th video. In this video again I am going to discuss the rest of the powers of the president, which I have discussed earlier in the part 3rd. In part 3rd, I discussed with you the two powers of the president, that is the executive, and second was our legislative powers. First was executive powers, which I discussed with you in the part 3rd video, and legislative powers also I discussed. And in this video I cover the financial powers, judicial powers, and the discretionary powers of the president. First of all, come to the financial powers. Financial powers, in the financial powers, the money bills. The money bills which deals with the income and expenditure of the government, that bills are called the money bills. The money bills are introduced in the Lok Sabha with the prior consent of the president. With the prior consent means with the prior permission of the president, only the money bill can be introduced in the Lok Sabha. Means for the money bill, the prior consent, firstly the permission of the president is required, then only money bill can be introduced in the Lok Sabha. Secondly, the president sets up a finance commission time to time. So time to time, a finance commission is set up by the president to recommend the distribution of revenue. The distribution of revenue between the states and the union. To the union government and the state government, the distribution of revenue means the income. जो income है to distribute the income, fund, जो भी fund होते हैं उसको distribute करने के लिए in between the state and the union, the president sets up a finance commission. He or she has a contingency fund. Contingency fund क्या होता है? It is like an emergency fund. When the unforeseen expenditure occurred, then in case the government can use the contingency fund. And contingency fund is held under the president. President has a power to issue the grant from the contingency fund. So he or she has a contingency fund from where he can give a grant. Grant means money allot करनी government को in case of unforeseen expenditure, like during the days our country is going through the COVID-19. और COVID-19 के लिए देखो गवर्नमेंट का बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ रहे हैं, ग्रांट देनी पड़ रही है टू द स्टेट, टू द वेरियस स्टेट्स. सेंटर का भी काफ़ी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो कहाँ से आएगा? मेनली कम्स फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड. दिस इज द फाइनेंशियल पावर्स. Next is the judicial powers of the president. The president cannot be punished by any court till he or she is in office. कि जब तक president अपनी पोस्ट पर है, president remains as president, he cannot be punished. जब तक वो president की पोस्ट पर है, वो कभी भी person punished नहीं होगा by any of the court. President has the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit, commute the sentence of any person convicted of any offense. समझो ध्यान से, देखो एक्चुअली में क्या है. प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी पर्सन की पनिशमेंट, किसी कोई क्रिमिनल है उसको कोर्ट ने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है, उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पावर है उसकी पनिशमेंट को कम करने का, माफ़ करने का राइट है, पावर है प्रेसिडेंट के पास. हाँ जी, जहाँ पर देखो पार्डन का मीन्स क्या होता है? कंप्लीट पार्डन. कंप्लीटली उसकी जो सज़ा है, जो भी उसको, अगर देखो 4 years की या 7 साल की उसको किसी पर्सन को पनिशमेंट मिलती है, उसको कंप्लीटली माफ़ कर देना. ठीक है, कंप्लीटली उसको रिमिट पार्डन दे देना, उसको टोटली ही उसकी जो पनिशमेंट है वो टोटली खत्म हो जाएगी ऑन द स्पॉट. ठीक है. रिप्रीव क्या मीन्स क्या होता है? टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस. टेम्परेरी सस्पेंशन मीन्स कुछ टाइम के लिए उसकी जो पनिशमेंट है उसको
उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना। अगर किसी को डेथ की पनिशमेंट मिली है बाई चांस, ठीक है, अगर उसको आफ्टर 2 मंथ्स के बाद अगर उसको फांसी की सज़ा होनी है तो हो सकता है प्रेसिडेंट उसको एक्सटेंड कर दे फॉर द 6 मंथ्स कुछ, क्योंकि देखो जो इसके लिए वो किस बेसिस पर करेगा, जो ऑफेंडर होगा, जो भी क्रिमिनल होगा, वो प्रेसिडेंट के आगे ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह जो भी अपनी पिटिशंस है वो रखेगा, तो उस बेसिस पर प्रेसिडेंट जो है उसकी पनिशमेंट को टेम्पररी सस्पेंड कर सकता है फॉर द सम टाइम। रिस्पीट का मीनिंग क्या होता है? अवॉर्डिंग लेस सेंटेंस। अगर किसी को देखो 7 ईयर्स की पनिशमेंट मिली है, 7 ईयर्स की पनिशमेंट है किसी को मिली, उसको कम करके वो 4 ईयर्स करने का पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो पार्डन, कंप्लीट पार्डन, रिप्रीव, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, रिस्पीट, अवॉर्डिंग लेस सेंटेंस। नेक्स्ट है रिमिशन। रिमिशन का मीन्स क्या होता है? रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ सेंटेंस। अमाउंट रिमिशन, देखो हम कहते हैं फाइन, रिमिशन ऑफ फाइन, आपने एप्लीकेशन पढ़ी होगी, रिमिशन ऑफ फाइन, ठीक है। रिड्यूसिंग अमाउंट, अगर किसी को देखो आपको पता है कि कोर्ट में चार्जेस फाइन भी लगता है, अगर किसी को 1 लाख का फाइन है उसको कम करके प्रेसिडेंट 50,000 कर देगा, 20,000 तक ले आएगा फाइन को, तो रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ सेंटेंस दैट इज द रिमिशन। कम्यूटेशन क्या होता है? चेंजिंग वन पनिशमेंट टू अनदर। कम्यूटेशन मीन्स एक पनिशमेंट को दूसरी पनिशमेंट में कन्वर्ट कर देना। अगर उसको फांसी की सजा मिली है उसको चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में वो चेंज कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस वजह से कम्यूटेशन, टू चेंजिंग वन पनिशमेंट टू द अदर पनिशमेंट। नेक्स्ट इज द discretionary powers. Discretionary powers, these are the special powers with the president. देखो क्या होता है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ अ हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट क्या होती है? देखो हंग पार्लियामेंट होते हैं जब, देखो आपको पता है लोकसभा में इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस हुए, उसके लिए एक मेजोरिटी ऑफ सीट चाहिए होती है पार्टी को गवर्नमेंट अपनी बनाने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट फ्रेम करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स चाहिए होती हैं। बट अगर कभी इलेक्शन होती हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गेन नहीं कर पाती है, ठीक है, सपोज अगर देखो फॉर एग्जांपल के लिए ले रही हूँ मैं आपको, अगर देखो 100 सीट्स है लोकसभा की, ठीक है, उसमें अगर 51 सीट्स की रिक्वायरमेंट है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 51 सीट्स होनी चाहिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और 51 सीट्स नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 51 सीट्स टोटल में गेन नहीं हुई है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसाइड हु शुड बी गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि किसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले टू फॉर्म द गवर्नमेंट। देखो ऐसे सिचुएशन में होता है क्या, मेनली प्रेसिडेंट क्या करेगा, जैसे जिसको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं, लाइक 35 सीट्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो उसको बोल सकता है प्रेसिडेंट ऑन द टाइम यू शो योर मेजोरिटी। अब अपनी मेजोरिटी में तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को अपने साथ एडअप करने के लिए ट्राई अप करेगी, ताकि जो 51 सीट्स की रिक्वायरमेंट है वो कंफर्म हो सके। तो इस वजह से अगर एक हंग पार्लियामेंट होती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू डिसाइड हु शुड बी गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। When the government loses a confidence vote in the Lok Sabha, देखो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा था आपने, अगर उस बेसिस पर अगर गवर्नमेंट कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेती है, देन उसके बाद हाँ देखो होता क्या है, मेनली लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, बट इट इज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू इधर डिसॉल्व द हाउस। अगला प्रेसिडेंट लगता है कि चलो हाउस को डिसॉल्व कर देते हैं, देन इट शुड बी डिसॉल्व्ड, और आस्क अनदर पार्टी टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। अदरवाइज क्या करेगा प्रेसिडेंट, अगर उसको लगता है कि इलेक्शन इस टाइम पर कंडक्ट करवाने पॉसिबल नहीं है, या फिर कुछ और सर्कमस्टांसेस है कंट्री में, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बोल सकता है टू प्रूव द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, ठीक है, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करती है तो उस टाइम प्रेसिडेंट क्या करेगा, कांग्रेस की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको बोल सकता है प्रेसिडेंट टू शो द मेजोरिटी। अगर कांग्रेस अपनी मेजोरिटी शो कर देगी और अपने सीट्स में मेंबर्स इंक्लूड कर लेती है, अपना कॉन्फिडेंस सपोर्ट शो करती है दूसरे मेंबर्स का कांग्रेस, ठीक है, तो क्या होगा उस टाइम पर प्रेसिडेंट उनको डिक्लेयर कर देगा कांग्रेस की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट लूजेस द कॉन्फिडेंस वोट in the Lok Sabha, then it is in the hands of the president to either dissolve the house
or ask another party to prove its majority on the floor of the house. इफ अ गवर्नर, अब देखो गवर्नर मैंने पहले भी बताया था आपको, गवर्नर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक तरह से प्रेसिडेंट का. इफ ए गवर्नर होल्ड्स द स्टेट लेजिस्लेचर बिल, अब देखो जो स्टेट्स का लेजिस्लेचर बिल होता है वो गवर्नर के पास आता है साइन होने के लिए, देन इट बिकम्स अ लॉ. बट गवर्नर क्या करता है, किसी टाइम पर उस बिल को होल्ड भी कर सकता है, एंड इट कैन सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन. अगर वो प्रेसिडेंट को सेंड करेगा गवर्नर, तब प्रेसिडेंट क्या करेगा, देन द प्रेसिडेंट में इधर गिव हिज और हर असेंट टू इट, या तो प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देगा, परमिशन दे देगा बिल को, ओके है चलो इसको पास कर देते हैं, और रिटर्न इट टू द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर वो क्या करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास दोबारा से रिटर्न कर देगा रिकंसिडरेशन दोबारा से देखने के लिए. ठीक है, या फिर वो रिटर्न कर देगा प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को कि दोबारा से इसको कंसीडर करो इसको, ताकि इसमें अगर कुछ और सजेशंस वगैरह वो दे सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए. तो अगर उस बेसिस पर देखो सेकेंड टाइम अगर रिकंसिडरेशन होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर का बिल दोबारा से फिर से प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं देगा सेकेंड टाइम, देन द बिल बिकम्स फेल, वो फेल हो जाएगा, वो कभी पास नहीं होगा. Okay, so these are the discretionary powers of the president. In the next video, I will cover the emergency powers, which are the most important powers of the president, and what is the position of the president in our country. So this is all about today, students. Today I discussed with you the financial powers of the president, the judicial powers, and at last I tell you about the discretionary powers of the president. This is all about today. Have a nice day. Goodbye all of you.